देव्यै नमः। ब्रह्मलीन श्री स्वामी ओंकारानंदाय नमः। Chapter 15 is devoted to a discussion of the virtues, glory, and essential character of the Supreme Person or God with attributes, who is the Almighty Lord, Creator, and Destroyer of the entire universe, the inner ruler and disinterested friend of all pervading, supremely merciful, all supporting, and worth approaching for shelter. Speaking of the Kshara Purusha Kshetra, the Akshara Purusha Kshetragna, and the Supreme Person God, it explains at length how God is superior to both Kshara and Akshara, why he is called the Supreme Person Purushottama, what is the value of knowing him as the Supreme Person, and how can he be realized? That is why the chapter has been designated as the Yoga of Supreme Person, Purushottama Yoga. Lord Krishna refers to the universe in terms of an Ashwatha tree, then disclosing the life's mystery said, O Arjuna, life is likened to a transient tree with the roots at the top and the branches below. He alone knows this life to be so. Vedas are its leaves, and the sense objects its buds, nourished by the gunas. Everywhere it spreads, entangling the world of men to endless pursuits. This tree of unseen form should be cut at the roots with the axe of dispassion. Lord Krishna advises to take refuge in him, the primeval person, in order to realize him in the form of the supreme state. Yogis attain my abode through enlightenment. No sun or moon or the fire illumines that abode, and one who reaches there returns not to the world. A fraction of eternal part of mine has come down as Jivatma, soul, taking the senses and mind for its mundane role, and the same faculties it takes to new bodies, even as the wind wafts fragrance from its source. The soul, so conditioned, enjoys the sense objects. Unseen is the Jivatma by the men of poor intellect. A man possessing an impure heart is incapable of knowing it under any circumstance. The man of wisdom alone can know the Jivatma in all his states. The sun, moon, and fire draw their splendor by my effulgence. Having entered the earth, I sustain all beings. Through the moon, I nourish the earth's vegetation. Through fire and air, as Vaishwanara, I cause the food's digestion. Seated in the hearts of all beings, I bestow knowledge and grant them memory and forgetfulness too. I am that which ought to be known through the Vedas, and as knower of the Vedas, I am the originator of Vedanta. I transcend both body and the conditioned soul. Hence, I am hailed by the Vedas as the Supreme Person. The man who knows me as the Supreme Person is a realized soul who has discharged all his obligations and has attained the fruit of them, all having accomplished the mission of his life. 15वें अध्याय में संपूर्ण जगत के कर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान, सबके नियंता, सर्वव्यापी, अंतर्यामी, परम दयालु, सबके सुहृद, सर्वाधार, शरण लेने योग्य, सगुण परमेश्वर,
पुरुषोत्तम भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप का वर्णन किया गया है। एवं क्षर पुरुष क्षेत्र, अक्षर पुरुष क्षेत्रज्ञ और पुरुषोत्तम परमेश्वर, इन तीनों का वर्णन करके क्षर और अक्षर से भगवान किस प्रकार उत्तम है, वे किस लिए पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उनकी पुरुषोत्तम जानने का क्या महात्म्य है और किस प्रकार उनको प्राप्त किया जा सकता है, इत्यादि विषय भलीभांति समझाए गए हैं। इसी कारण इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग रखा गया है। अश्वत्थ पीपल के वृक्ष को कहते हैं। समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष उत्तम माना गया है, इसलिए उसके रूपक से संसार का वर्णन किया गया है। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार आदि पुरुष नारायण से ही हुआ है। जो मनुष्य मूल सहित इस संसार वृक्ष को तत्व से जानता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की माया से उत्पन्न यह संसार वृक्ष की भांति उत्पत्ति विनाशशील और क्षणिक है, अतएव इसकी चमक दमक में न फंसकर इसको उत्पन्न करने वाले मायापति परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। जो संसार उसको जानता है वह वे दोनों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर और वेदों को जानता है। अव्यक्त रूप मूल से उत्पन्न हुआ, उसी के अनुग्रह से बढ़ा हुआ, बुद्धि रूप प्रधान शाखा से युक्त, बीच बीच में इंद्रिय रूप कोटरों वाला, महाभूत रूप शाखा प्रतिशाखाओं वाला, विषय रूप पत्तों वाला, धर्म और अधर्म रूप सुंदर पुरुषों वाला तथा जिसमें सुख दुख रूप फल लगे हुए हैं, ऐसा यह सब भूतों का आजीव्य सनातन ब्रह्म वृक्ष है। अहंता, ममता और वासना तीनों लोकों में निवास करने वाले आवागमनशील प्राणियों के अंतःकरण में व्याप्त है। संसार वृक्ष के आदि अंत और स्थिति नहीं है। संसार वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र के द्वारा समूल बीज सहित उखाड़ना चाहिए। अभिमान रहित और अनन्य आश्रय पूर्वक पूर्ण विश्वास करके परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। समस्त कामनाओं से निवृत्त हुए ज्ञानी जन अविनाशी पद को पाते हैं। इस परम धाम को जाकर वे नहीं लौटते। उस तेजोमय धाम सूर्य, चंद्र और अग्नि भी प्रकाशित नहीं करता। इस संसार में जो जीव रूप शक्ति, भोक्ता, कर्ता इत्यादि वह मुझ परमात्मा का ही अंश है। मेरी भांति जीव समुदाय भी अनादि और नित्य है, मुझसे भिन्न नहीं है। इसमें प्रकृति का अंश किंचित मात्र भी नहीं है। प्रकृति के साथ संबंध वह खुद जोड़ता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर जो अनर्थ का कारण है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का संबंध प्रकृति में ही स्थित है। जब यह जीवात्मा पहले शरीर से निकलकर दूसरे शरीर को पाता है, तब वह मन सहित इन 6 इंद्रियों को साथ लेकर जाता है। दूसरे शरीर में जाने पर वही स्वभाव होने से विषयों का सेवन करने लगता है। इस कारण जीवात्मा बार बार ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है। मूढ़ लोग जो कि दृष्ट और अदृष्ट विषयों की लालसा के कारण मोहित होते हैं, विवेक दृष्टि वाले
योगी मनुष्य जीवात्मा के स्वरूप को जानते हैं। मलिन अंतःकरण वाला पुरुष किसी प्रकार भी नहीं जान सकता। समस्त जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य और चंद्रमादि में स्थित तेज को भगवान का ही तेज बतलाते हैं। प्राकृत पदार्थों के संबंध से जीव प्रभावित हो जाता है। मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर कामना और आसक्ति से रहित होकर अपनी शक्ति से चराचर समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ। रसस्वरूप चंद्रमा होकर समस्त वनस्पतियों का, धान, जौ आदि औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं ही पेट में रहने वाला जठराग्नि होकर प्राणियों के शरीर में स्थित प्राण और अपान वायु से संयुक्त हुआ भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य ऐसे 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। जिसका अंतःकरण शुद्ध स्वच्छ होता है, उनके हृदय में मेरा प्रत्यक्ष दर्शन होता है। पुण्य कर्मों के अनुसार ज्ञान और स्मृति प्राप्त होते हैं तथा पापाचारियों के ज्ञान और स्मृति लोप होता है। समस्त वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेद के अर्थ को समझाने वाला भी मैं ही हूँ। 2 भाव संसार में पुरुष नाम से कहे जाते हैं। इनमें क्षीण होने वाला नाशवान क्षर पुरुष है और दूसरा उससे विपरीत अक्षर पुरुष है। क्षर जगत तथा अक्षर जीव दोनों लौकिक है। भगवान इन दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है। इन दोनों अपरा और परा प्रकृति के नाम से 7वें अध्याय 4 और 5वें श्लोक में, अधिभूत और अध्यात्म के नाम से 8वां अध्याय 3 और 4 श्लोक, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से 13वां अध्याय 1 श्लोक और इस अध्याय में अश्वत्थ और जीव के नाम से किया गया है। उनमें से एक को क्षर और दूसरों को अक्षर बतलाया है। उत्तम अतिशय उत्कृष्ट पुरुष तो अन्य ही है, अर्थात इन दोनों से अत्यंत विलक्षण है, क्योंकि परमात्मा के नाम से कहा गया है, जो तीनों लोकों में प्रविष्ट रहकर उनके नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, सदा ही निर्विकार शक्तिमान है, जो गुणातीत शुद्ध और सबका आत्मा है, वही परमात्मा पुरुषोत्तम है। क्षर, अक्षर और ईश्वर स्वरूप को भगवान समझते हैं। उपर्युक्त लक्षणों से युक्त पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। इस प्रकार अर्जुन के सामने अपने परम रहस्य को बतलाते हैं। क्षर और अक्षर से उत्तम होने के कारण लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। भगवान को पुरुषोत्तम जानने वाले सर्वज्ञ पुरुष सर्वभाव से मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजते हैं। यद्यपि सारी गीता का नाम ही शास्त्र कहा जाता है, परंतु यहाँ स्तुति के लिए प्रकरण से यह 15वां अध्याय ही शास्त्र कहा गया है, क्योंकि इस अध्याय में केवल सारे गीता शास्त्र का अर्थ ही संक्षेप से नहीं कहा गया है, किंतु इसमें समस्त वेदों का अर्थ भी समाप्त हो गया है। यह कहा भी है कि जो उसे जानता है वही वेद को जानने वाला है। समस्त वेदों से मैं ही जानने योग्य हूँ। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसा परम गोपनीय शास्त्र मैंने कहा है। हे भारत, ऊपर दिखलाए हुए अर्थ से युक्त इस शास्त्र को जानकर ही
मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य होता है, अन्य प्रकार से नहीं। भक्त को ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह ज्ञात ज्ञातव्य और कृतकृत्य हो जाता है। हे भारत, क्योंकि तूने मुझसे यह परमार्थ तत्व सुना है, इसलिए तू कृतार्थ हो गया है।